4 days of pounding rain have left Mumbai bedraggled and weary. But it wasn't only because several places had breached the 150 mm mark. It was because in just 81 hours from Friday to Monday evening, Mumbai recorded 550 mm of rain, just 10 mm short of the average for the entire month of August. The sea too displayed the impact of heavy rains as huge waves splashed along the shore at the many seafronts in the city. Very shortly, we're going to get those visuals right on your screens. These are, in fact, the visuals. What we're seeing is the reality of Mumbai in the rains. The sea also showing its fury. Massive waves lashing the coastline, adding to the misery of a waterlogged city. This high tide there, in fact, is pushing the rainwater right back into Mumbai, making it even harder for floodwaters to recede. It's nature's double blow. Like you can see, torrential rain from above and the sea swelling from below. For residents in low-lying areas, this is nothing short of a nightmare. In fact, the entire Mumbai is on its knees. Roads have turned into rivers, subways are completely submerged, and daily life has been thrown out of gear. For lakhs of commuters, this isn't just inconvenience, it's a complete breakdown of the city's rhythm. Every year, in fact, we hear about preparations, but one heavy spell of rain and the system completely collapses. With drains overflowing and roads submerged in many areas, the incoming high tide has made it difficult for floodwaters to recede. The sea level rise during high tide is causing backflow and stagnation in low-lying regions like Dadar, Sion, Kurla, Andheri and Chembur. Early this morning, roughly around 6:45 a.m., images from Andheri subway showed the extent of flooding, forcing its closure. Several low-lying parts of the city remain submerged, disrupting daily life. The Meteorological Department has issued heavy rainfall alerts for Mumbai, Thane, Palghar, Raigad, Washim, Kolhapur and Nanded districts. What you're watching on your screens are in fact visuals coming in from Andheri. There, the Andheri subway shows us the extent of flooding. The subway is closed for obvious reasons. You can see this is the kind of nightmare that every Mumbaiker dreads. When the city slows down like this, it's not just about delays, it's about the loss of hours, the struggle to reach work, to return home, and for many, even the fear of being stranded in the open during relentless rains. The Meteorological Department has issued heavy rainfall alerts for Mumbai, Thane, Palghar, Raigad, Washim, Kolhapur and Nanded districts. The Brihan Mumbai Municipal Corporation has issued a warning urging residents to avoid unnecessary travel and stay indoors as much as possible. For emergencies, people are advised to call 100 or 112 immediately. In fact, what is happening in Mumbai at the moment, Mumbai's Lifeline, its local trains there too have slowed down. Services are running late, platforms are crowded and passengers there are stranded for a city that depends on trains more than anything else. Even a 15-minute delay feels like the whole city has stopped moving. These are the visuals coming in from Chembur. You can see commuters facing a nightmare.
Meanwhile, their Indigo Airlines has also issued a travel advisory as heavy rain floods Mumbai. They are causing waterlogging and traffic delays on routes to the airport. The airline warns of possible flight delays in departures and arrivals and regrets the inconvenience to passengers. Right on your screens is the travel advisory issued by Indigo. It says with Mumbai drenched in heavy showers, several routes to the airport are witnessing waterlogging and sluggish traffic. Transport system, in fact, we saw collapsing yesterday, is still struggling. Central and Harbour local trains are 20 to 25 minutes late and Western Railway trains are late by around 10 to 15 minutes. Since reports last came in, the authorities have appealed to citizens to avoid unnecessary travel. Meanwhile, yesterday's deluge will always be remembered for a number of heartwarming scenes. Rescuers there helped school children out of a bus which got stranded amid a flood-like situation near Gandhi Market. Districts, in fact, near Mumbai, such as Thane, Falgar and Raigad are also expected to witness similar weather conditions. The IMD warned that heavy rainfall will continue to lash western states, including parts of Goa, Konkan, central Maharashtra and Gujarat for the next 7 days. No relief is expected anytime soon as the Met Office has issued a red alert for the city today as well, anticipating heavy to extremely heavy rainfall. My colleague Shubham, in fact, gets us the latest from ground. Let's quickly take a listen. मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 48 घंटों से तेज़ मूसलाधार बरसात हो रही है और मुंबई के साइन इलाके की आज हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ सिर्फ आपको मुंबई की सड़कों पर पानी ही पानी दिखेगा। ये आप तस्वीरों में इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये मुंबई का साइन इलाका है जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ता है। ऐसे में आपको जहाँ की तस्वीर देखें कई सारे दुकानों में जो है पानी घुसते हुए दिखाई दे रहा है। इस वजह से दुकान भी बंद किए गए हैं और अलग अलग इलाकों में आज आपको मुंबई के इसी तरीके की तस्वीर मिलेगी जहां पर आपको सिर्फ जगह पर पानी ही पानी मिलेगा। जहां तक आपकी उस शोर की हम बात करें तो दादर जो साइन इलाका है, दादर साइन माटुंगा तमाम ऐसे जो इलाके हैं वहां पर आपको सिर्फ इसी तरीके की तस्वीर देखने मिलेगी। कई सारे वाहन चालक हैं जो अपनी गाड़ियों से जाना चाहते हैं लेकिन गाड़ी बंद पड़ जा रही है तो वो नहीं जा पा रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाना चाहते हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि आसमान में 48 घंटे से हो रही बरसात के कारण मुंबई में इस वक्त माहौल जो है वो पानी पानी हो गया है। कई लोग अपने घर में ही बैठे हैं, कई लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन इसी तरीके का दिक्कतों का सामना तमाम लोगों को करना पड़ रहा है। For everyone living in Mumbai right now, Mumbai has once again been brought to its knees. Roads that should carry traffic are instead carrying water viewers. And there, in fact, the Arabian Sea is heaving with power. And the city is feeling its impact. Huge waves are crashing against the shore are not just a spectacle but a reminder that the tide, in fact, has clearly joined hands with the rain. The rising sea level pushes water back into the city, leaving entire neighborhoods waterlogged. You can see these visuals. In fact, almost entire Mumbai is
In fact, the streets of Mumbai have turned into water and rivers there. This is the familiar picture every Mumbaiker dreads every monsoon. The live visuals they're coming in. Very shortly we'll confirm the location as well. You can see, as I said, it's a nightmare for the commuters. Streets are completely waterlogged. And mind you, this is something that every Mumbaiker dreads during monsoon. Vehicles, in fact, some of them we're learning also have broken down in the middle of waist-deep water. Traffic piled up as far as the eye can see, and people forced to step out, wading through dirty, stagnant water just to get across. Let me quickly go across to my colleague Shubham, who joins us over the phone line with more details on the same. Shubham, जो हमें दिख रहा है वो दर्दनाक तो है ही है, काफी खतरनाक भी है, जानलेवा है रादर। हम लोग देख रहे हैं कंप्लीटली वाटरलॉक्ड स्ट्रीट्स है। अभी क्या सिचुएशन है मुंबई में? बिल्कुल, जब तक बारिश होती रहेगी तब तक मुंबई के अलग अलग इलाके में, अलग अलग एरियाज में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलेगी। देखिए, सीधी तौर पर मुंबई में पिछले 48 घंटे से इतनी बारिश हो रही है कि पानी जो है वो निकल ही नहीं पा रहा है। इस वजह से सड़कों पर पानी है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल्स में आज छुट्टी कर दी है। बीएमसी ने तमाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑल द जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ये कहा गया कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें घर पर बिठाकर ही काम करिए, आने की यहाँ पर आने की मत दीजिए, क्योंकि इस वक्त मुंबई की जो सिचुएशन है वो बहुत खतरनाक हो चुकी है। अलग अलग जगहों में वाटर लॉगिंग ये प्रॉब्लम है, इस वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रही है। ट्रैफिक की समस्या है, इसी वजह से लोगों से कहा है कि घर पर रहें, क्योंकि अलग अलग इलाके में इस वक्त वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। शुभम, हमें ये भी बताइए कि ऐसा तो है नहीं कि ये जो सिचुएशन हम मुंबई में देख रहे हैं ये रातों रात हुई है। कहीं ना कहीं क्यों जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविक अथॉरिटीज है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदार है जो सिचुएशन हम आज मुंबई में देख रहे हैं उसके लिए। बिल्कुल, देखिए, ये मुंबई में जो सबसे ज्यादा बरसात होती है ये सबको पता है। ऐसे में जो गटर होते हैं वो जब ओवरफ्लो होने लगते हैं तो सड़कों पर जो गटर का पानी है वो भी रोड पर आ जाता है। इसी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और मुंबई में हमेशा ये हिस्ट्री रहा है कि मुंबई में हमेशा हर साल अच्छी बरसात होती है, और इस साल बरसात जो है वो लेट हुई है। ये बरसात जो है जुलाई की सावन महीने की जो बरसात होती है वो मानसून कहा जाता है, लेकिन अब अगस्त महीने में इस तरह से बरसात हो रही है। अगले हफ्ते फेस्टिवल है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणेश चतुर्थी भी है। ऐसे में इस तरह से जो ये हो रही है वाकई में एक चिंता का विषय है कि अगले कुछ घंटे और अगले 1-2 दिन अगर इसी तरह से और बरसात रही है तो लोगों के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बीएमसी और पुलिस की तरफ से क्या अरेंजमेंट्स है ग्राउंड पे? किसी भी तरीके का कोई भी अरेंजमेंट रेस्क्यू टीम्स की तरफ से क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, बीएमसी हो या मुंबई पुलिस हो, मुंबई पुलिस के कमिश्नर देवेंद्र भारती उन्होंने ट्वीट कर भी लोगों से अपील की है कि आप घरों से बाहर न निकले। मुंबई में चारों तरफ पानी है, हो सके तो घरों में रहिए, अवॉइड करिए ट्रैवलिंग। बीएमसी के तमाम जो कर्मचारी हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। जो गटर जहां पर पैक हुआ है वो गटर क्लीन, जैसे ही बरसात अगर रुकती है तो शायद थोड़ी सी अगर 2 से 3 घंटे की बरसात रुकेगी तो शायद मुंबई में जितने भी वाटर लॉगिंग है उससे जो है निजात पाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आसमान में अगर हम देखें तो काले बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि अगले कुछ घंटे मुंबई के लिए आसान होने वाले हैं। जी, और शुभम, हमें ये भी बताइए कि क्या कहीं पर भी किसी भी तरीके के कोई रिलीफ कैंप्स, कोई टेम्पररी शेल्टर खड़े किए गए हैं टू हेल्प दोज हु आर लिविंग इन लो लाइंग एरियाज? बिल्कुल, देखिए, ऐसे जो लोग हैं जिनके घरों में पानी घुस गया है उन्हें कहा जा रहा है कि घरों से दूर रहिए, उस इलाके में मत रहिए। उनके लिए हॉस्पिटल्स हैं वहां पर रहिए, और ऐसे कई गेस्ट हाउस है जहां पर ले जाया जा रहा है। लेकिन मुंबई की अगर हम बात करें तो ये मुंबई से बाहर जैसे नांदेड़, कोल्हापुर,
वासीम, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बहुत स्थिति मुंबई से ज्यादा भी खराब है। वहां पर तमाम लोगों के रिलीफ कैंप जो है वो लागू चालू किए गए हैं ताकि लोग वहां पर सेफ रह सकें, घरों में जिनके पानी क्या है, जो पहाड़ों पे रहते हैं। तो ऐसे में इस तरह की जो बरसात है ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में जो है हमें देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटे के लिए क्या वार्निंग जो है वो लोगों को दी गई है और लोगों का क्या कहना है? क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड तो होंगे ही, हर मॉनसून यही हाल हो जाता है, साल भर साल तो बदलता रहता है पर ग्राउंड सिचुएशन सेम रहती है। देखिए मुंबई ये महानगरी है, ये हम हर साल कहते हैं कि इस साल बारिश से निपटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सिचुएशन वैसे ही रहते हैं। हम हर साल देखते हैं चंद घंटों की बरसात और 48 आवर से कंटिन्यू जो रेन्स हो रहे हैं। तो आप समझिए कि मुंबई में क्या सिचुएशन होते हैं, क्योंकि पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो गटर्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और वही वजह है कि मुंबई की सड़कों पर जो है वो पानी लगना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है मुंबई की और अगले कुछ घंटे यानी अगले 22 तारीख तक अलर्ट जो है वो मौसम विभाग में यानी IMD ने जारी किया है कि मुंबई में हैवी रेन जो है वो हो सकते हैं। अब देखना होगा कि अगर मुंबई में इसी तरह से आज भी बरसात होती है तो जाहिर सी बात है कि सुबह और भी स्थिति जो है सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। लेकिन शुभम, सवाल तो ये भी है ना, आखिर बारिश के पहले ही क्यों नहीं सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है? क्यों हमेशा सिटी को सफर करना पड़ता है? क्यों वेट किया जाता है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो जाए, कुछ लोग सफर करें, कुछ लोग गिर जाए अपनी गाड़ी पे चलते चलते? पहले क्यों नहीं? देखिए हर कोशिशें की जाती है, गटर साफ किए जाते हैं दिखाने के लिए, वहां पर फोटोग्राफी भी होती है कि हमने गटर साफ करते, लेकिन मुंबई में इतनी बारिश होती है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा जा सकते हैं कि मुंबई में इतनी हैवी रेनफॉल होती है जिसके निपटने के लिए कोई इंतजामात किसी के पास, ना गवर्नमेंट के पास है ना BMC के पास है। क्योंकि अगर आप सोचिए 48 आवर्स अगर आपकी कंटिन्यूस सिटीज में बारिश होने लगेगी तो वाटर जाएगा कहाँ? गटर ओवरफ्लो हो जाते हैं और पानी सड़कों पर आ जाता है और हाई टाइड आने लगते हैं। तो ऐसे में यही वजह है कि हर साल मुंबई में यही सिचुएशन देखने को मिलती है, क्योंकि मुंबई में बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है अदर सिटीज के कंपेयर के अगर हम बात करें तो। और एक तरफ देखा जाए तो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, दूसरी तरफ बारिश आती है, सड़कें, ब्रिज, सबवे सब बंद, जो सड़कें हैं वो एकदम नदियां बन जाने लग जाती है। ये क्या दर्शाता है? लोग जो आके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो क्या देखेंगे? देखिए यही वजह है कि मुंबई जो फिल्मी हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है, करोड़ों रुपए का टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। BMC एशिया की सबसे बड़ी अमीर महानगर पालिका है, उसके बावजूद ये सपनों का शहर है। लेकिन बरसात के महीने में यहाँ पर ऐसे सिचुएशन हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो या तमाम चीजें हो, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसके बाद लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब BMC की तरफ से एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर देने तक का उन्होंने ये तो चालू कर दिया, बट उसी तक लिमिटेड है या ग्राउंड पर किसी तरीके का कोई एक्शन भी देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ग्राउंड पर लोगों से बात की जा रही है, तमाम चीजें क्लियर की जा रही है कि किसी भी तरीके से पानी सिस्टम ना हटाया जाए और रोड जो है लोगों से अपील की गई ज्यादा से ज्यादा व्हीकल लेके आप सड़कों पर मत रुकिए ताकि ट्रैफिक कम हो। जब ट्रैफिक कम होगा तो सड़कों पर आपको ऑल द सिचुएशन जो है वो क्लियर मिलेगी, पानी क्लियर करने में आपको आसानी हो जाएगी और यही वजह है कि इस वजह से जो है चीजें मुंबई में इस वक्त काम किया जा रहा है। चलिए हमें शुभम ये बताइए, आज मुंबई, कल थाने, फिर पालघर, फिर ऐसी ये सब कहानी चलती रहेगी, क्या पूरे वेस्टर्न बेल्ट के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनेगा या हर साल सेम ही कहानी रिपीट होगी? देखिए हर साल ये दावे किए जाते हैं कि इस साल हम बारिश से निपटने की तैयार है, लेकिन हर साल सिचुएशन ऐसी ही होती है, प्रॉब्लम हो जाती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।